اوڈے فرینک لارنس اور میگن کی لاشیں مقتول ملازم کی لاش کے ساتھ جو اب بری طرح سڑ رہی تھی مسٹر براؤنسی کی رہائش گاہ کے عقبی احاطے میں ایک گڑھا کھود کر دفن کر دی گئیں۔ مسٹر براؤنسی ہر طرح ہم دونوں سے تعاون پر آمادہ نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا، ایک ریٹائرڈ فوجی اور اپنی حکومت کا وفادار ہونے کی حیثیت سے میرا فرض ہے کہ اگر میں تم دونوں کے چنگل سے بچ جاؤں تو سب سے پہلا کام یہی کروں کہ تمہارے بارے میں انتظامیہ کو اطلاع دے دوں۔ لیکن جہاں انسانی رشتوں کا کھیل شروع ہو گیا ہے، تم نے انسانیت کے رشتوں کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے ان ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جن کی مدد سے تمہاری زندگی بچ سکتی تھی اور تم یہاں سے فرار کی کوشش کر سکتے تھے۔ کامیابی یا ناکامی تمہارا ذاتی مسئلہ تھی۔ ممکن ہے جس طرح گرے وائلز کی خوفناک بندشیں توڑ کر تم یہاں تک پہنچے، اسی طرح یہاں سے نکل جانے میں کامیاب ہو جاتے، لیکن تم نے اپنی آزادی بلکہ اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر ہماری زندگیاں بچا لی ہیں۔ میں کس طرح اس درندگی کا ثبوت دے سکتا ہوں کہ تمہیں گرفتار کروا دوں؟ میں خود کو پوری زندگی اپنی قوم اور اپنی حکومت کا مجرم سمجھ کر شرمندہ ہو سکتا ہوں، لیکن انسانیت کے خلاف یہ جرم میں نہیں کر سکوں گا۔ آؤ ہم پہلے یہ لاشیں ٹھکانے لگا دیں، اس کے بعد کوئی اور کام کریں گے۔ آ جاؤ دوستو۔ براؤنسی سچے دل سے یہ باتیں کر رہا تھا۔ نینسی میری بچی اور کیلس، تم جانتی ہو کہ تمہیں کس طرح یہ راز رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہی ایک گڑھا کھود کر لاشیں دفن کر دی گئی تھیں۔ اس دوپہر جو لنچ ہم نے کیا وہ یادگار حیثیت کا حامل تھا۔ مجھے تو یہی محسوس ہوا جیسے صدیوں بعد میں دوبارہ انسانوں کی آبادی میں پہنچا ہوں۔ چرن سنگھ نے کھانا کھاتے ہوئے کہا، بھائی جی، اتنا عمدہ کھانا کھلا کر اگر کوئی مجھ سے کہے کہ اپنے ہاتھوں سے پھانسی لگا کر مر جاؤ تو میں اس کی بات مان لوں گا۔ مسٹر براؤنسی نے کہا، کیا میں اس پر شک کروں کہ تم گرے وائل سے بھاگے ہوئے قیدی ہو؟ وہ بولا، نہیں مسٹر براؤنسی، یہ حقیقت ہے۔ براؤنسی نے کہا، تم جس جرم کی پاداش میں وہاں پہنچائے گئے تھے وہ اب تمہارے اور خدا کے درمیان معاملہ ہے۔ وہاں رہ کر اور یہاں پہنچنے تک تم جن مصائب کا شکار ہوئے، شاید وہ سزا تمہارے جرائم کے لیے کافی ہو۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کیا کروں؟ میں نے کہا، ہم اس سے زیادہ تمہیں تکلیف بھی نہیں دے سکتے مسٹر براؤنسی۔ یہاں تک تو ہم پہنچ گئے ہیں، اگر زندگی باقی ہے تو یہاں سے بھی نکل جائیں گے۔ مسٹر براؤنسی نے کہا، میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ چرن سنگھ نے کہا، ہمیں ایک بار اور ایسا ہی کھانا کھلا دیں، اس کے بعد ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد وہ بولے، نہیں، میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ مجھے سوچنے دو کہ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ تم یہاں سے کہاں جانا چاہتے ہو؟ چرن سنگھ بولا، کوئی بھی ایسی جگہ جہاں خود کو آزاد محسوس کر سکیں، اس کے بعد کوئی نہ کوئی ٹھکانہ بن ہی جائے گا۔ براؤنسی بولا، اس جگہ کے بارے میں تفصیل جانتے ہو؟ بولا، نہیں۔ براؤنسی نے کہا، یہ گرے وائلز کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ یہاں کی آبادی تقریباً 1.5 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے، جس میں سے تقریباً 1.5 لاکھ نفوس گرے وائلز کی انتظامیہ سے متعلق ہیں۔ ان میں مختلف ممالک کے باشندے ہیں جو اپنے اپنے ملکوں کے قیدیوں کا ریکارڈ رکھتے ہیں۔ مفرور قیدیوں کی تلاش اور ان کے خلاف کارروائیوں کے لیے 20 مزید افراد پر مشتمل دستے ہیں جو ہر طرح کے ساز و سامان سے لیس ہیں اور اکثر مفرور قیدیوں کو گرفتار کر کے لاتے ہیں جن کا رابطہ گرے وائلز سے رہتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تمہارے فرار کی اطلاع ان تک پہنچ چکی ہوگی۔ یہ جزیرہ نہیں بلکہ جزیرہ نما ہے، لیکن تانڈوز نے تقریباً 2 سال سے خشکی کا راستہ ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ تانڈوز کا مسئلہ خالص اسپینی حکومت کا مسئلہ ہے، اس لیے ہیڈ کوارٹر کی انتظامیہ اس میں مداخلت نہیں کرتی۔ یہاں آنے والے اور یہاں سے جانے والے صرف سمندری راستے استعمال کرتے ہیں اور اس کے لیے حکومت کے بحری جنگی جہاز استعمال ہوتے ہیں۔ غیر سرکاری باشندے بھی انہی جہازوں میں سفر کرتے ہیں اور انہیں جانچ پڑتال کے سخت مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان حالات میں کسی اجنبی شخص کا ان جہازوں کے ذریعے یہاں سے نکل جانا تقریباً ناممکنات میں سے ہے۔ میں تمہیں کسی قیمت پر اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ تم اس طرح یہاں سے نکل جانے کی کوشش کرو، یہ ممکن ہی نہیں ہے، مسٹر براؤنسی نے عجیب سے انداز میں کہا، اور میں اس میں ان کی اپنائیت کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اچانک وہ سوال مجھ سے پہلے چرن سنگھ پوچھ بیٹھا جو میرے ذہن میں آیا تھا۔ اس نے اپنی انگریزی میں پنجابی شامل کرتے ہوئے کہا، یہ تانڈوز کیا چیز ہیں جی؟ اور مسٹر براؤنسی اسے دیکھنے لگے۔ بولے، تانڈوز آج کل اس علاقے کا سب سے بڑا مسئلہ بنے ہوئے ہیں۔ دراصل یہ لوگ گرے وائلز علاقوں کے وہ قدیم قیدی ہیں جو صدیوں سے یہاں آباد ہیں۔ اس وقت بھی جب اسپینش حکومت نے بین الاقوامی معاہدے کے تحت مشترکہ قید خانے قائم نہیں کیے تھے، یعنی زمانے قدیم میں۔
ग्रेवाइल्स के इन जजीरों को कैदियों के लिए मुनासिब तरीन समझा गया था और जहां वो तमाम कैदी लाकर रखे जाते थे जो शहंशाहों के मुखालिफ होते, और फिर जब कैद की मियाद खत्म हो जाती तो वो अपनी दुनिया से इस कदर अजनबी हो चुके होते थे कि किसी कीमत पर वहां जाना पसंद न करते। ऐसे कैदियों को, जिनमें चोरों, डाकुओं, कातिलों और हर किस्म के जराइम पेशा अफराद की बहुतात थी, स्पेन के शहरों में तो आबाद नहीं किया जा सकता था। चुनाचे स्पेन की हुकूमत ने फैसला किया था कि उन कैदियों को पहाड़ों में आबाद कर दिया जाए और उन्हें जिंदगी की आम सहूलतें फराहम कर दी जाएं। चुनाचे तांडूज की ये बस्ती कायम हो गई। कच्ची बस्तियां थीं जहां जिंदगी की सहूलतें सिर्फ इस कदर थीं कि वो लोग जिंदा रह सकें, लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने मुस्तकबिल में पेश आने वाली सूरत हाल पर गौर नहीं किया था। तांडोज वहीं आबाद हो गए और उनके मामूलाते जिंदगी जारी हो गए। ये लोग खेती बाड़ी करते थे और कभी कभी कश्तियों में बैठकर जहाजों में लूट मार भी किया करते, लेकिन कोई बड़ी बहरी कज़ाकी उन्होंने नहीं की थी। हुकूमत उनकी तरफ से अंदेशों का शिकार जरूर थी, लेकिन इस मामले में कोई मौसर कार्रवाई अमल में ना आ सकी और ये मुनज़्ज़म होते चले गए। पिछले चंद सालों से उन्होंने बगावत का ऐलान कर दिया और अपने लिए अपने ही इलाके में खुद मुख्तारी का मुतालिबा करने लगे। इस सिलसिले में उन्होंने पहले तो कानूनी कार्रवाइयां की, लेकिन हुकूमत ने जब उनकी सरकूबी के लिए छोटे छोटे फौजी दस्ते रवाना किए तो चंद ही घंटों के बाद उन फौजी दस्तों को तहस नहस कर दिया गया। सिर्फ चंद ही अफराद जिंदा वापस आ सके थे। उसके बाद छोटी मोटी कार्रवाइयां जारी रहीं, लेकिन उन लोगों ने जंगलों और पहाड़ों में इस तरह अपने मोर्चे बना रखे हैं कि छोटी मोटी जंगी कार्रवाइयां बिल्कुल बेअसर साबित होती हैं। तांडूज के खिलाफ छोटी मोटी कार्रवाइयां अब भी जारी रहती हैं। इस इलाके की सरहदी बस्ती फेरिकोल है। फेरिकोल भी तकरीबन 60,000 अफराद की आबादी है, लेकिन अब ज्यादातर यहाँ तांडोज के खिलाफ कार्रवाई करने वाले रजाकार दस्ते मुतय्यन हैं। तांडोज मुख्तलिफ रास्तों से यहाँ भी पहुंच गए हैं और उनकी वहशत खेज कार्रवाइयां इस जगह भी जारी रहती हैं। अक्सर पेशतर अलमनाक हादसे होते रहते हैं। उन्होंने इस जजीरा नुमा का खुश्की का रास्ता बंद कर दिया है और फेरिकोल के बाद उनका अपना इलाका शुरू हो जाता है। चुनाचे उस तरफ से कोई आमदोरफ्त मुमकिन नहीं है। मिस्टर ब्राउनसी ने मुकम्मल तफसीलात बताते हुए कहा और मैं गहरी सोच में डूब गया। चंद लम्हात के बाद मैंने गर्दन उठाई और मिस्टर ब्राउनसी से कहा, मिस्टर ब्राउनसी, इस मालूमात के लिए मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। आपने चूंकि हम पर इतनी तवज्जो दी है और हमारी वजह से शदीद ज़हनी दबाव का शिकार होने के बावजूद आपने हमें माफ कर दिया है, इसलिए मुझे जुर्रत हुई है कि मैं आपसे मजीद इस सिलसिले में मालूमात हासिल करूं। मिस्टर ब्राउनसी के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर वो बोले, तुम किस जुर्म की पादाश में ग्रेवाइल लाए गए थे? मैंने पूछा, क्यों? ये सवाल आपने इतनी देर के बाद क्यों किया? वो बोला, ना करता, जैसा कि मैं तुमसे वादा कर चुका हूँ, लेकिन ग्रेवाइल्स में लाए जाने वाले वो कैदी होते हैं जो अखलाक और आदाब और इंसानियत की हुदूद से गुजर चुके होते हैं, जैसा कि तुम्हारा वो साथी जिसका नाम तुम ओडे लेते थे और जैसा कि उसके दूसरे साथी थे, सिवाय उस शख्स मैगन के जिसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ऐसे लोग तो ग्रेवाइल से भागे हुए लोगों में शुमार किए जा सकते हैं, लेकिन वो जो एहसान करने के बाद भी अपना एहसान तस्लीम नहीं करते, ऐसे खतरनाक कैदी नहीं हो सकते जिन्हें ग्रेवाइल जैसी भयानक जगह लाया जाए। मैंने आहिस्ता से कहा, बाज लोग गर्दिशे वक्त के कैदी भी होते हैं मिस्टर ब्राउनसी। और मिस्टर ब्राउनसी हमदर्दाना निगाहों से मुझे देखने लगे। फिर बोले, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि बेशतर बेगुनाह लोग ऐसे ऐसे अजाब का शिकार हो जाते हैं कि इंसानियत उस पर चीख उठती है। खैर, तुम क्या पूछना चाहते हो? मैंने कहा, पूछना नहीं बल्कि मशवरा लेना चाहता हूँ। ब्राउनसी ने कहा, मुतमईन रहो, मैं तुम्हें मशवरा दूंगा। तुमने मेरी और मेरे खानदान की जिंदगी बचाई है, इसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है, तो ये बात मेरे फराइज में भी शामिल है कि मैं तुम्हारे साथ हर मुमकिन ताउन करूं जो कर सकता हूं। मैंने कहा, शुक्रिया मिस्टर ब्राउनसी। क्या कोई सूरत ऐसी भी हो सकती है कि हम दोनों उन जहाजों में यहाँ से बाहर निकल सकें? वो बोला, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि समंदर के रास्ते सफर करने वाले एक एक शख्स पर इतनी कड़ी निगाह रखी जाती है कि किसी अजनबी का यहाँ दाखिल होना या यहाँ से निकल जाना नामुमकिनात में से है। मैंने पूछा, वो रजाकार जो बैनुल अक़वामी हैसियत रखते हैं, मेरा मतलब है ग्रेवाइल्स के कैदियों के निगरान, क्या यहाँ से बाहर नहीं आते जाते रहते? ब्राउनसी ने कहा, उनकी एक मियाद होती है, उस मियाद से पहले वो यहाँ से नहीं जाते, और जब कोई गिरोह यहाँ अपनी तकर्री का वक्त पूरा करके वापस जाता है तो बेशुमार मराहिल से गुजर कर उसे यहाँ से निकलना नसीब होता है। ये सब कुछ उस बैनुल अक़वामी मुआहदे के तहत शराइत के तौर पर तयशुदा है ताकि ग्रेवाइल्स का कोई मफरूर कैदी यहाँ से न निकल सके। मैंने कहा, गोया हर रास्ता महदूद है हमारे लिए। मिस्टर ब्राउनसी ने कहा, हाँ, इस सिलसिले में कोई भी कोशिश बज़ाहिर कारगर नहीं हो सकती।
तहम अगर तुम चाहते हो तो हालात का जायजा ले लो, मुमकिन है तुम इस सिलसिले में कोई बेहतर तदबीर कर सको। मैंने कहा, दूसरी सूरत खुश्की के उस रास्ते से निकलने की है जो तांडोस के इलाके से गुजरता है। क्या उस तरफ से सफर नहीं किया जा सकता? बेशक इसमें मुश्किलात जरूर पेश आएंगी, लेकिन मेरा ख्याल है अगर हम तांडोस के इलाके से होकर निकलने की कोशिश करें तो मुमकिन है कामयाबी नसीब हो जाए। मिस्टर ब्राउनसी ने मेरी बात खत्म होने से पहले ही हाथ उठा लिया था, लेकिन कुछ न बोले। जो ही मैं खामोश हुआ वो बोल पड़े, नामुमकिन, नामुमकिन। जिंदगी खो बैठोगे? वो अजनबियों की बू सूंघ लेते हैं और हर अजनबी को हुकूमत का नुमाइंदा समझते हैं। मैं नहीं जानता कि तुम किस तरह अपने आप को उनमें जम कर सकोगे। वो सफाक और वहशी कातिल और लुटेरे हैं। वो इंसानियत से इस कदर ना आशना हो चुके हैं कि अगर तुम उनकी कार्रवाइयों के नमूने देखो तो बर्दाश्त न कर सको। दीवाने हैं सब के सब। उनकी कार्रवाइयां यहाँ तक फैली हुई हैं। अगर तुम शहर की सैर के लिए निकल जाओ तो तुम्हें ऐसे आसार जरूर नजर आएंगे जो तांडोस दहशत पसंदों की कार्रवाइयों की यादगार होंगे। चरण सिंह ने पंजाबी जबान में कहा, तो फिर भाई जी बेहतर ये है कि हम यहीं शादी वादी कर लें, बच्चे पैदा करें और आराम से रहें। उसकी बात पर मैं हंसने लगा। मिस्टर ब्राउनसी भी मुस्कुराते हुए बोले, क्या कहता है तुम्हारा दोस्त? मैंने कहा, कुछ नहीं, कह रहा है कि हम यहीं रिहाइश इख्तियार कर लें। मिस्टर ब्राउनसी उस बात पर मुस्कुराए नहीं बल्कि संजीदा से हो गए थे। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, काश ये मुमकिन होता, लेकिन ग्रेवाइल से फरार का मंसूबा इसीलिए तो न बनाया गया होगा कि वहां से हटकर यहाँ आबाद हो जाओ। तुम यकीनन उन लोगों के दरमियान जाना चाहते हो जो तुम्हारे अपने हैं। मैंने कहा, इसमें कोई शक नहीं है मिस्टर ब्राउनसी, दिल बड़ा तड़पता है उन लोगों के लिए, लेकिन बाहर तौर हम कुछ न कुछ सोचेंगे, कोई हल निकाल लेंगे। ब्राउनसी बोला, एक दरखास्त करना चाहता हूं मैं तुमसे। उस वक्त तक जब तक कोई मुकम्मल सूरत हाल जहन में न आ जाए, मुनासिब होगा कि तुम इसी जगह कयाम करो। तुम दोनों मुझ पर और मेरे अहले खानदान पर किसी तरह बार नहीं बनोगे। मैं तुम्हारी बेहतर हिफाजत कर सकूंगा और ये काम करके मुझे खुशी भी होगी। मैंने शुक्रगुजार निगाहों से मिस्टर ब्राउनसी को देखा और गर्दन हिलाकर बोला, मिस्टर ब्राउनसी, इस दियार गैर में आपका ये ताउन हमारी जिंदगी के लिए बहुत बड़ी नेमत है, हालांकि हमारे हाथों आपको नुकसान ही पहुंचा है। मिस्टर ब्राउनसी फिर अपने मखसूस अंदाज में हाथ उठाकर बोले, बेहतर है कि हम तकल्लुफात में वक्त जाया न करें। क्या तुम मेरी ये पेशकश कबूल करते हो? मैं जानता हूं कि ग्रेवाइल से निकलने वाले इस कदर कम हिम्मत और आम से लोग नहीं होंगे जो मुझ जैसे कमजोर बूढ़े का सहारा कबूल करने पर मजबूर हो जाएं। लेकिन वक्त का तकाजा यही है कि तुम्हारे मामलात में मुदाखलत करूं। ये बहस तो अब खत्म कि तुम यहाँ नहीं रहोगे। उसके साथ साथ ही ये पेशकश करता हूं कि मैं अपनी तमाम तर सलाहियतों से काम लेकर तुम्हें यहाँ से निकालने की कोशिश करूंगा। फौजी जिंदगी से रिटायर होने के बाद मैंने ये पुरसुकून गोशा अपना लिया था, इसलिए भी कि मेरे साथ भी कुछ अलमनाक वाकयात पेश आ चुके हैं, लेकिन मेरे ताल्लुकात मुख्तलिफ लोगों से हैं। दुनिया से किनारा कशी का ये दौर ज्यादा तवील नहीं है। मैं अपने ताल्लुकात फिर बहाल कर दूंगा और तुम्हारे लिए यहाँ से निकलने के रास्ते तलाश करूंगा। ये मेरी मुखलिसाना पेशकश है, चुनाचे कुछ वक्त इत्मीनान से गुजारो। हाँ, अपने तौर पर तुम प्लानिंग कर सकते हो और मुझसे मशवरा भी। वैसे मैं हेडक्वार्टर की ताज़ा सूरत हाल का जायजा लेने के बाद तुम्हें ये बात भी बताऊंगा कि कुछ नए कैदियों के फरार की खबरें यहाँ तक पहुंची हैं या नहीं। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर मैं तुम्हें मौका दूंगा कि तुम यहाँ की सैर भी कर लो। हमने मिस्टर ब्राउनसी की पेशकश कबूल कर ली थी, चुनाचे यहाँ हमारी हैसियत मेहमानों की सी हो गई, लेकिन ऐसे मेहमानों की सी जो आम लोगों की निगाहों में नहीं आ सकते थे। मिस्टर ब्राउनसी ने अपने अहले खानदान को खुसूसी तौर पर यह हिदायत कर दी थी कि हमारे बारे में कोई खबर बाहर न जाने पाए। बच्चों को उन्होंने खास तौर से हिदायत की थी, उन्हीं से खतरा था, वरना बाकी लोग तो संजीदा थे। दूसरी रात ही मिस्टर ब्राउनसी से नैन्सी के बारे में भी बात हुई और मिस्टर ब्राउनसी ने गमनाक लहजे में बताया, एशर नैन्सी का शौहर था और इन बच्चों का बाप। बहुत ही खूबसूरत जवान था। तुमने ड्राइंग रूम में उसकी तस्वीरें लगी हुई देखी होंगी और ये लिबास जो तुम्हारे बदन पर मौजूद हैं एशर की ही यादगार हैं। वो एक हवाई हादसे का शिकार हो गया। नैन्सी उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी। उसके बाद नैन्सी गमों के अंबार तले दब गई। उसका ज़हनी तवाजुन भी किसी कदर खराब हो गया है, कभी उस पर दौरा भी पड़ जाता है। वैसे आमतौर से वो खामोश रहती है। मेरा ख्याल है एशर की मौत से आज तक किसी ने उसके होंठों पर मुस्कुराहट नहीं देखी। ये बच्चे बाप से महरूम हो गए हैं। मेरा बेटा बाहर कारोबार करता है और कभी कभी यहाँ आता है। मैं शायद ये इलाका छोड़ देता, लेकिन नैन्सी यहाँ से नहीं जाना चाहती और यही कैफियत कैलिस की है। उन दोनों की वजह से मैं अपने इस आबाई इलाके को नहीं छोड़ सकता। नैन्सी की उस बेचारगी पर हम दोनों को ही दुख हुआ।
बहरहाल यहाँ रहकर हम उनके लिए किसी तौर बार नहीं बनना चाहते थे, लेकिन मजबूरियां भी कोई हैसियत रखती थीं। मिस्टर ब्राउनसी ने हमारे लिए वाकई कोशिशें शुरू कर दी थीं। अब वो दिन भर घर से गायब रहते। उनकी गैर मौजूदगी में कैलिस और नैन्सी यहाँ के मामूलात संभाले रहती। मिस्टर ब्राउनसी का हल्का अहबाब बहुत ही महदूद था। सिर्फ चंद ही अफराद कभी कभार वहां आ जाते, जिनसे मिस्टर ब्राउनसी ड्राइंग रूम में ही मुलाकात करते और वहीं से उन्हें रुखसत कर देते। इस दौरान सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ था जब उनके मुलाकाती आए थे। ये भी बूढ़े और रिटायर्ड फौजी थे। हम मुतमईन थे किसी तरह की कोई परेशानी फौरी तौर पर नहीं थी। उम्दा से उम्दा खाना फराहम किया जा रहा था। हल्की फुल्की वर्जिश भी हमने जारी रखी। खासतौर से दोनों बच्चे हर वक्त हमारे साथ लगे रहते, लेकिन हम उन बच्चों को खुद से ज्यादा मानूस नहीं करना चाहते थे, वरना हमारी रवानगी के बाद उनके लिए फिर दुख पैदा हो जाता। चंद रोज के बाद मिस्टर ब्राउनसी ने बताया कि यहाँ नए मफरूर कैदियों के पहुंचने की कोई इत्तला बज़ाहिर नहीं है। चंद पुलिस अफसरान से उनकी दोस्ती है, उनके दरमियान भी वो आम तौर से उठते बैठते रहे हैं। हर मौजू पर बातचीत भी हुई है, लेकिन ऐसी कोई इत्तला उनके कानों तक नहीं पहुंची और इस वजह से अगर हम लोग चाहें तो थोड़ी बहुत आवारागर्दी भी कर सकते हैं, लेकिन मिस्टर ब्राउनसी के साथ। उन्होंने तन्हा हमें बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी थी। मिस्टर ब्राउनसी कभी कभी बहुत उदास हो जाते थे। एक बार उन्होंने कहा, अब तो जी ये चाहता है कि या तो खुद भी तुम लोगों के साथ यहाँ से निकल जाऊं या फिर तुम लोगों को ही यहाँ रहने पर मजबूर कर दूं। कुछ ऐसी ही उनसियत हो गई है तुमसे। सोचता हूँ तुम चले जाओगे तो एक बार फिर उदासियां मेरी जिंदगी में लौट आएंगी। मैंने कहा, आप अपने बेटे के पास क्यों नहीं चले जाते मिस्टर ब्राउनसी? वो बोला, ये दोनों खवातीन काश ये इस बात पर तैयार हो जाएं। मैं वाकई अब बहुत थकन महसूस करने लगा हूँ। बहरहाल एक मंसूबा मेरे जहन में आया है जो मुखलिसाना तौर पर मैं तुम्हारे कानों तक पहुंचा देता हूँ। मैंने कहा, जी फरमाइए। वो बोले, अगर तुम पुलिस अफसरान के तौर पर फेरिकोल तक पहुंच जाओ और वहां अपने लिए कोई जगह बना लो तो मेरा ख्याल है कुछ अरसा वहां गुजारने के बाद वापस आकर तुम यहाँ से बाहर जाने का मुतालबा कर सकते हो। तुम दोनों ज़हीन हो, मैं तुम्हारा तज्जिया करता रहा हूँ। अगर ये कोशिश कर लो और दहशत पसंदों के खिलाफ थोड़ी बहुत कार्रवाई कर लो तो तुम्हें एक खास मकाम हासिल हो जाएगा और उसके बाद तुम यहाँ से बाहर निकलने का मुतालबा कर सकते हो। ये मंसूबा देर तलब जरूर है, लेकिन मेरा ख्याल है इस इलाके से निकलने का इससे मौसर जरिया और कोई नहीं। मिस्टर ब्राउनसी के इस मंसूबे पर हम दोनों गौर करने लगे। इस दौरान उस इलाके की जितनी सैरो सयाहत की थी और जो कुछ यहाँ देखा था, उससे मिस्टर ब्राउनसी की बातों की तस्दीक होती थी कि यहाँ से निकलना आसान काम नहीं है, बल्कि एक तरह से नामुमकिन है। यहाँ उन लोगों ने इस कदर सख्त इंतजाम कर रखा था कि किसी का निकल जाना या दाखिल हो जाना नामुमकिनात में से था। चुनाचे थोड़े वक्त का ज़िया और सही, इस उम्मीद पर कि शायद कोई बेहतर सूरत पैदा हो जाए, चरण सिंह तो फौरन तैयार हो गया, लेकिन मैंने सोचने का वक्त तलब किया और उसी रात चरण सिंह से इस सिलसिले में गुफ्तगू भी की। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।